तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हमने कल सीमॉस इन्वर्टर स्टार्ट किया था और उसमें कवर किया था कि कैसे सीमॉस इन्वर्टर क्या है एंड देन उसका सर्किट डायग्राम बताया था एंड देन एन-मॉस एंड पी-मॉस का इंडिविजुअल डिफरेंट रीजन ऑफ ऑपरेशंस बताए थे एंड विद कंडीशंस कि किस रीजन में क्या कंडीशन होगी। ओके एंड देन IV करेक्टरिस्टिक्स फॉर द एन-मॉस एज वेल एज द पी-मॉस। इसके बाद जब दोनों को हम कनेक्ट कर दे रहे हैं एन-मॉस एंड पी-मॉस को, सो जो सर्किट बना उसके लिए हमने IV करेक्टरिस्टिक्स एक ही ग्राफ में फॉर पी-मॉस एंड एन-मॉस के लिए दिखाया था। ओके ये पूरा कल कवर किया था। सो ये करेक्टरिस्टिक्स थी। इसके बाद एक ही करेक्टरिस्टिक्स में मतलब IV करेक्टरिस्टिक्स जो इनपुट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बनाया था। सो आज इसी करेक्टरिस्टिक्स को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ओके सो आप लेक्चर के एंड तक बने रहिएगा। ये लेक्चर बहुत ही आपको इंटरव्यू में एंड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके सो आज का जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में एक ऐसा पार्ट कवर करने वाला हूँ जिससे 100% उस पार्ट से कोई भी छोटा से छोटा एग्ज़ाम लेकर के बड़े से बड़े एग्ज़ाम तक उस पार्ट से क्वेश्चन 100% आता है। ओके जैसे अगर JIU में देख लें तो JIU में भी CMOS इन्वर्टर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके इसके बाद गेट के देख लें तो गेट में भी जो है रीजन ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे या ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स के वोल्टेज ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स के बेस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो आज ये सारा पार्ट मैं लेक्चर में कवर करूँगा। ओके सो आप लेक्चर के लास्ट तक बने रहिए। सो मैं एक बार फिर से उस करैक्टरिस्टिक्स को रिपीट कर देता हूँ। ओके सो जैसा कि हमने कल IV करैक्टरिस्टिक्स फॉर CMOS इन्वर्टर के लिए बनाया था। ओके सो IV characteristics for CMOS इन्वर्टर। CMOS इन्वर्टर जैसा कि ये आपका PMOS था एंड ये NMOS था and these two terminals means gate terminals of the both the MOSFETs are connected together and new name of that terminal is the in and the voltage applied at this terminal mentioned as or the variable is here Vin, consider named is Vin, and this is the common node which is nothing but of Vout, and this is the supply voltage VDD. Okay we are considering the name of this transistor NMOS is a PN, or for example let's say this is the name of this transistor is MN and the name of this transistor is MP. Okay so the characteristics, IV characteristics for this, so this y-axis was the current and x-axis was the voltage. Okay here voltage is VDS. Okay and here the current is simple ID N or IDP. Here means the current in the PMOS transistor is nothing but of IDP, and current in this NMOS is denoted by IDN.
Okay, so if we change this input voltage, if we change, then how the current will change? Focus here. Let's the threshold voltage for this transistor means that the VTN or of VTP, mod of VTP is nothing but of 0.5 volt, for example. Okay, for example 0.5 volt. So if this input voltage greater than 0.5 volt, okay, then the current will flow or the transistor Mn will turn on first. Okay, so draw the characteristics. So when we draw the characteristics, so let's first we draw the characteristic for this NMOS transistor, and then we draw the characteristic for the PMOS transistor in the same coordinate. Okay, so this is the characteristics for the NMOS. Okay, so this is for, let the value of this nothing but of Vin is equal to 0.5. okay, why? Because here we write VGS and this is the VGS and this is the VSGP, here plus and minus. If we written here expression for the VGSN is nothing but of Vin, okay, and VSGN is nothing but of VDD minus of Vin. Okay, so here Vin is 0.5 volt, so for 0.5 and the threshold voltage is also the 0.5, so means that is the very less current, and below this current, below this voltage, so the current below this voltage, so means the transistor will operate, means NMOS transistor will operate into the saturation region. So sorry, will operate into the cutoff region, means no current will flow below this. So this is the cutoff region. Okay, got it? So here this is the characteristics for the Vin is equal to 0.5 volt. Now we increase the Vin by some voltage. Let's the next voltage Vin is nothing but of 0.1 volt. So now here Vin is equal to 1 volt, and then again increase, so Vin is nothing but of 1.5 volt, and then the next Vin is equal to 2 volt, and then here Vin is equal to 2.5 volt. Okay, now we draw the characteristics for the PMOS. Now this is the characteristics for the NMOS, IDN versus VDSN. Okay, so right here VDSN. Now the characteristic for the PMOS, we draw this character ID versus or IDP versus VDP for the PMOS transistor in the same coordinate. So we have already shown yesterday here, when Vin is less than 0.5 or Vin is equal to 0, actually this is for the Vin is equal to 0. Okay, this line VDSN is nothing but of, this is in this line Vin is equal to 0. So when Vin is equal to 0, VSGP is nothing but of simple VDD. Okay, so here will be the VDD. Okay, so Vin nothing but of here. Okay, so we draw these characteristics now like that. Similarly another for 0.5 and then
for 0.1 sorry 1 and then for 1.5, okay, and then here for this is for 0 Vin is equal to 0. Similarly this is also for Vin is equal to 0, okay, and now this is Vin is equal to 0.5, this is Vin is equal to 1, this is Vin is equal to 1.5, and this is Vin is equal to 2 volt, okay. Now multiple intersections are existed in this characteristics because the NMOS and PMOS are drawn in the same coordinate, okay. So here you will see that यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, ओके, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, ओके, और एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, या किसी एक के लिए कंसीडर कर लो, ओके। एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये हुआ, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये हुआ, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये हुआ, मल्टीपल इंटरसेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, ओके। सो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट वर्सेस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, इस रीजन पर अगर आप देखेंगे इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर यहाँ पे VDS(N) क्या है, VDD के बराबर है ना, यानी कहने का मतलब इस एक्सिस पर मॉसफेट क्या होगा, कौन सा, NMOS विल बी ऑफ, ओके। सो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करें हियर, so this is the Vin and this is the Vout, ओके। सो Vin की वैल्यू जब 0 होगी, ओके, ध्यान देना हियर Vin is equal to 0, here will be the Vin is equal to 0. So Vin is equal to 0 means VGS is equal to 0, VGS(N) is equal to 0, VGS(N) 0 means NMOS will be turned off, and Vin 0, then VSGP is equal to VDD means MOSFET PMOS will be turned on, and this VDD comes into the output terminal. So for the Vin is equal to 0, output is nothing but of VDD, okay. Now the next we increase the value of this Vin, okay. So जैसे Vin इंक्रीज करेंगे, सो क्या होगा, Vin इंक्रीज करेंगे, नाउ दिस ट्रांजिस्टर विल टर्न ऑन, जैसे थ्रेशोल्ड के आगे जाएंगे ट्रांजिस्टर विल टर्न ऑन, सम करंट विल फ्लो एंड Vin इंक्रीज मीन्स VSGP विल गो डाउन, ओके, VSGP will go down means that this current will goes down because IDP is depends upon the VSG. Drain current is nothing but of the function of the source to get voltage, okay. So VSGP जैसे डिक्रीज करेगा, सो मेरा ड्रेन करंट रिड्यूस करेगा, सो हियर नथिंग बट ऑफ दैट दिस ड्रॉप, जब ये टर्न ऑन होगा तो ट्रांजिस्टर एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ RP, हियर रेजिस्टेंस जब NMOS टर्न ऑन होगा द रेजिस्टेंस ऑफ RN, ये क्या है, ये ऑन रेजिस्टेंस है, ओके। सो जब ऑन रेजिस्टेंस है, सो जैसे ये करंट मेरा ये Vin इंक्रीज कर रहा है, Vin इंक्रीज किया, VGS(N) इंक्रीज कर रहा है, यानी कहने का मतलब IDN इंक्रीज कर रहा है, ओके, IDN इंक्रीज कर रहा है, Vin इंक्रीज कर रहा है, ओके। इधर Vin इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, मेरा IDP डिक्रीज कर रहा है ना, पहले Vin इक्वल टू 0, यानी इस डायरेक्शन पे अगर देखें सो मेरा ये क्या है, IDN इंक्रीज कर रहा है, इस डायरेक्शन पे देखें सो IDP मेरा डिक्रीज कर रहा है ना। सो IDP डिक्रीज करेगा, यानी ड्रॉप अक्रॉस दिस वोल्टेज, ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस मीन्स RP के अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो मेरा क्या होगा, IDP डिक्रीज कर रहा है ना। सो
ड्रॉप डिक्रीज करेगा। ओके, सो जैसे जैसे वी इंक्रीज करते जाएंगे सो आउटपुट वोल्टेज मेरा क्या होता जाएगा, धीरे धीरे आउटपुट वोल्टेज मेरा स्लोली डाउन होता जाएगा। ओके, सो जैसे स्लोली डाउन होता जाएगा, स्लोली डाउन होता जाएगा, ये डाउन होता जाएगा क्योंकि रीजन ऑफ ऑपरेशन चेंज होगा। ओके, सो जैसे रीजन ऑफ ऑपरेशन चेंज होगा ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे दिखेगी, लास्ट में ऐसे दिखेगी। क्यों, क्योंकि वी आउट मेरा क्या हो रहा है, वी आउट एक तरह से आईडीपी डिक्रीज कर रहा है ना, आईडीपी डिक्रीज का वी आउट मेरा क्या इंक्रीज कर रहा है ना। सो यानी कहने का मतलब ये कि मेरा जो वी आउट है वो धीरे धीरे किधर जा रहा है, ट्रांजिस्टर मेरा किस रीजन पे जा रहा है, कुछ समझ में आया। अगर मैं VSD की वैल्यू लिखूं, VSDP इज नथिंग बट ऑफ VDD माइनस ऑफ वी आउट। ओके, ID मेरा क्या कर रहा है, IDP मेरा डिक्रीज कर रहा है, IDP डिक्रीज करने का मतलब IDP डिक्रीज कर रहा है, यानी वोल्टेज ड्रॉप का RP मेरा डिक्रीज कर रहा है, वी आउट इंक्रीज कर रहा है। वी आउट अगर इंक्रीज कर रहा है सो इसका मतलब VSDP डिक्रीज कर रहा है, यानी ट्रांजिस्टर मेरा लीनियर रीजन की ओर मूव करने जा रहा है ना। सो यहाँ से ट्रांजिस्टर धीरे धीरे क्या होगा, जैसे अगर इसको ड्रॉ करें दोबारा, ये ऐसे धीरे धीरे डाउन हो रहा है और ये ऐसे, यानी एन मॉस मेरा कहाँ पे जा रहा है, एन मॉस मेरा कट ऑफ से इंक्रीज होते हुए मतलब सेचुरेशन में जाएगा, सेचुरेशन से फिर लीनियर पे चले जाएगा। इस प्रकार से मेरा मॉसफेट पी मॉस क्या होगा, पहले वो लीनियर रीजन पे है, लीनियर रीजन से कहाँ पे जाएगा, क्योंकि उस समय वी आउट तो मेरा मैक्सिमम था ना, जब ये मेरा ऑफ था एन मॉस, जब एन मॉस ऑफ है सो आउटपुट मेरा क्या है, VDD है, यानी VSDP क्या जीरो है एक तरह से। तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर मेरा पी मॉस किस रीजन पे, लीनियर रीजन पे। सो जब लीनियर रीजन पे है तो ये वाला रीजन इधर इस पॉइंट पे क्या होगा मेरा, इस पॉइंट की अगर बात करें सो एन मॉस मेरा क्या होगा, ऑफ होगा। ओके, और पी मॉस क्या होगा, मेरा लीनियर रीजन पे होगा, यानी रेजिस्टिव रीजन, एज ए रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। ओके, समझ गए। तो ऐसे ही जैसे वी इन इंक्रीज करते जाएंगे सो फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये आएगा, एक पॉइंट ये आएगा, एक पॉइंट ये आएगा, जैसे वी इन इंक्रीज करते जाएंगे एक पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा, एक पॉइंट ऐसे मेरा यहाँ पर आएगा, ऐसे आता जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा लास्ट में, जब वी इन की वैल्यू VDD हो जाएगी तो वी इन की जैसी वैल्यू VDD होगी उस समय मेरा पी मॉस ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे पी मॉस ऑफ हो जाएगा और ये एन मॉस मेरा क्या हो जाएगा, वो रजिस्टिव रीजन में चला जाएगा। ओके, सो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पर वी इन और वी आउट आपस में बराबर होंगे। सो ये पॉइंट क्या होगा, उस पॉइंट को हम नथिंग बट ऑफ VM बोलते हैं। ओके, जिस पर हमारा एन मॉस सेचुरेशन की तरह बिहेव करेगा और पी मॉस भी सेचुरेशन की तरह बिहेव करेगा। ओके, सो अगर इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे मेरा क्या होगा, इस पॉइंट पे मेरा पी मॉस सेचुरेशन की ओर मूव करेगा और एन मॉस मेरा पी मॉस मेरा रेजिस्टिव की तरह रहेगा और एन मॉस मेरा सेचुरेशन की साइड जाएगा और ये पॉइंट जो होगा इस पे रिवर्स हो जाएगा, पी मॉस मेरा सेचुरेशन में की ओर जाने लगेगा और एन मॉस मेरा रेजिस्टिव की तरह जाने लगेगा, बिहेव करने लगेगा। सो ये ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स थी।
ओके, तो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी को बोलते हैं शॉर्ट में VTC। ओके, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसको माइंड में रखना है, ठीक है। तो अगर मैं पर्टिकुलर एक वैल्यू को लेकर के कंसीडर करूं, एक वैल्यू को लेकर के अगर मैं ग्राफ पूरा ID वर्सेस VDS अगर ड्रॉ करूं तो शायद मे बी आपको कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो, जैसे ये मेरा करंट एक्सिस है, ये मेरा वोल्टेज एक्सिस है। ओके, यहाँ पे मैंने लिख लिया VDSN। अब समझना, यहाँ पे मेरा ID है। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ कि जब ये V इन की वैल्यू यानी इसमें क्या V आउट के बराबर है, वो कितना है, सिंपल Vm है। ओके, Vm। ओके, सो मैं अगर इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करूँ सो वो क्या कैसे दिखेगी, ओके, सो इसमें क्या होगा, VGSN कितना होगा, सिंपल V इन जो कि क्या है Vm के बराबर है, इसके लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, सो PMOS के लिए क्या होगा, PMOS के लिए तो VSGP है, VSGP वो कितना है, VDD माइनस ऑफ V, तो वो कितना बन जाएगा, VDD माइनस ऑफ Vm, यानी ये इधर से स्टार्ट होगा तो वो कैसे जाएगा, अगर उसको मैं ड्रॉ करूं सो वो ऐसे जाएगा। ओके, तो इसको थोड़ा NMOS का करेक्ट कर देते हैं। ओके, ये ऐसे आया, ये VDSN है और PMOS के लिए ये आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। ये वोल्टेज क्या होगा, ये वोल्टेज VDSN है। ओके, सो ये वोल्टेज कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। ओके, सो ये बताते हैं क्या है। देखो, हमने Vm के लिए ड्रॉ किया। ओके, सो ये कैरेक्टरिस्टिक किसके लिए है, सिंपल VSGP इज इक्वल टू VDD माइनस ऑफ Vm है। ओके, यानी इधर जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं ये तो ये क्या हैं, ये कुछ नहीं, ये आप ये वैल्यू है। ओके, वो कौन सी वैल्यू है, सो जहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टर सेचुरेशन रीजन पर हैं वो वैल्यू क्या बताया था हमने, सिंपल Vm बताए थे। ओके, और Vm के पहले इधर देखो, Vm के पहले क्या था, मेरा PMOS रेजिस्टिव था। ओके, सो इसके पहले यानी एक वोल्टेज होगा, उसका नाम हमने दिया यहाँ पर Vout1, और Vm के बाद जो वोल्टेज का नाम दिया हमने, फॉर एग्जांपल वो हमारा Vout कुछ ले लेते हैं, Vout2 ले लेते हैं। ओके, और ये Vm क्या है, सिंपल Vout
ये भी वी आउट ही है। ओके, ये वी आउट के बराबर होगा, ये रखा। सो अब इधर देखना, ये जो वैल्यू है वी आउट 1, वो क्या होगी? सिंपल वी जी एस एन माइनस ऑफ वी टी एन। सो क्या होगा? वी एम माइनस ऑफ वी टी एन होगा। और वी आउट 2 क्या होगा? वी आउट 2 इज इक्वल टू वी डी डी माइनस ऑफ वी एस डी पी। सो वी डी डी क्या है? सॉरी, वी डी डी है, एंड माइनस वी एस डी पी क्या होगा? वो होगा सिंपल वी एस जी पी माइनस ऑफ मॉड ऑफ वी टी पी। सो इसको क्या लिख सकते हैं? वी डी डी माइनस ऑफ वी एस जी पी को क्या लिख सकते हैं? वी डी डी माइनस ऑफ वी एम माइनस ऑफ मॉड ऑफ वी टी पी। सो वो आ जाएगा क्या? वी एम माइनस ऑफ वी एम प्लस ऑफ वी टी पी मॉड। सो वी आउट की वैल्यू, वी आउट 2 की वैल्यू ये आ जाएगी। ओके। सो जब एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा उनकी वैल्यू देगा। सो आपको सिर्फ माइंड में क्या रखना है कि इन इंटरसेक्शन पॉइंट पे कौन सा ट्रांजिस्टर किस रीजन ऑफ ऑपरेशन में काम करेगा, है ना। सो ये वी आउट हमारा 1 जो है, वी आउट 1 है जो, वो वी आउट से कम है, जो कि वी एम से कम है ना। तो उस केस में हमारा एनमॉस किस में होगा? सिंपल लीनियर रीजन पे, यानी रेजिस्टिव रीजन, है ना। और जब वी आउट का वैल्यू, वी आउट 2 एक तरह से देखा जाए, वो वी आउट से ज़्यादा है ना। सो वी आउट अगर 2 बोलें, जो कि वी आउट से बड़ा है, सो उस केस में हमारा क्या होगा? वो पी मॉस किस रीजन पे चला जाएगा? सैचुरेशन की ओर। ओके, सॉरी एक्चुअली इधर एक ये क्या होगा? ये लीनियर रीजन होगा, ये भी। ओके, ये लीनियर होगा। देखो इस कैरेक्टरिस्टिक में, देखो यहाँ पर ये मेरा क्या है? वी एम है ना। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये है ना। सो वी एम से बड़ा क्या है इधर डायरेक्शन में, और वी एम से छोटा क्या है? ये डायरेक्शन है ना। सो वी एम से जब ऊपर जाएंगे, सो हमारा पी मॉस क्या है? रेजिस्टिव है ना। और वी एम से नीचे जाएंगे, जैसे ही नीचे जाएंगे तो मेरा एनमॉस रेजिस्टिव होगा, यानी लीनियर रीजन पे होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है मैंने। ओके, सो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको माइंड में रखना है, यही आपका वीटीसी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो टोटल ये इम्पोर्टेंट पार्ट था। ओके, सो आगे हम थोड़ा इसका और कवर। सो जब आप किसी टूल पे अगर जब ड्रॉ करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, सो वी आउट वर्सेस वी इन, सो वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा दिखेगा आपको। ओके, सो ये जो इंटरसेक्शंस पॉइंट है, इनके वोल्टेज नोटेशंस जैसे दिया जाता है, इसको वी एच बोलते हैं, इसको वी एम बोलते हैं, इसको वी ओ एल बोलते हैं, इसको वी इन, वी आई एल, वी एम, वी आई एच। ओके, सो मैं नेक्स्ट लेक्चर जो सीमॉस से नोट कर जो लास्ट पार्ट होगा, उसमें ये सबकी डिफिनीशंस बता दूंगा कि वी ओ एच क्या है, वी एम क्या है, वी ओ एल क्या है, वी आई एल क्या है, वी एम क्या है, वी आई एच क्या है। ओके, और ये जो स्लोप्स यहाँ पे देखेंगे, वो स्लोप नथिंग बट ऑफ दैट डी वी आउट अपॉन ऑफ डी वी इन क्या है? वो -1 होता है। ओके, इसी प्रकार से सेम ये चीज़ यहाँ पर है। सो इस कंडीशन पर, इन स्लोप्स पर, यानी यहाँ पर है मेरा जो एन मॉस एंड पी मॉस मेरा रेजिस्टिव। ओके, फिर यहाँ पे पी मॉस मेरा क्या होगा? सैचुरेशन। फिर पी मॉस यहाँ पे क्या होगा?
सेचुरेशन। ओके, सो एनमॉस की अगर बात करें यहाँ पर क्या होगा, एनमॉस क्या होगा, सेचुरेशन, सॉरी एनमॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनमॉस लीनियर हो जाएगा। ओके, इस पॉइंट पर क्या होगा, एनमॉस मेरा सेचुरेशन, पीमॉस रेजिस्टिव। ओके, इस पॉइंट पर क्या होगा, एनमॉस रेजिस्टिव एंड पीमॉस सेचुरेशन। ओके, सो इसके एडवांटेजेस क्या हैं सीमॉस इन्वर्टर के, कि वेरी लो पावर कंजम्पशन डिवाइस है, हाई नॉइजेबिलिटी है, हाई फैन आउट है, रेल टू रेल आउटपुट है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एनमॉस का जो फैब्रिकेशन स्टेप है, उस एनमॉस के फैब्रिकेशन में स्टेप ज़्यादा होते हैं और वो स्लाइटली हायर डिले होता है, क्योंकि पीमॉस की मोबिलिटी जो होती है, मतलब स्लाइटली हायर डिले क्यों, क्योंकि पीमॉस की मोबिलिटी की वजह से। ओके, सो ये चीज़ आपको माइंड में रखना होगा। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं ओवरऑल। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये जैसे फैन आउट क्या है इसकी डिफिनीसन बताऊंगा, नॉइज़ इम्यूनिटी क्या है, पावर कंजम्पशन कैसे लो है, और इसके बाद इनकी डिफिनीसन VOH है, VM है, VOL है, VIL है, VM है, VIH है, ये सारा कुछ मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में समराइज कर दूंगा। ओके, इसके बाद सीमॉस इन्वर्टर से इससे ज़्यादा नहीं जाएगा कहीं भी, ना इंटरव्यू में से ज़्यादा पूछा जाएगा। ओके, सो आप लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर करिएगा। ओके, सो जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू आप सभी लोगों को। अगर कोई डाउट आए लेक्चर में आप कमेंट करिएगा। ओके, सो बट लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।